بھولے نہیں ہو اپنے کے پیسوں کی باتیں کرتے رہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی جزوی تطبیق. اب تک تمویل کے وہ طریقے اصولی طور پر بتائے گئے جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو سکتے ہیں. اب یہ بات قابل غور ہے کہ ان طریقوں کی بینک کی جزئیات پر تطبیق کیسے ہو. جب تک بینک کی ایک ایک جزوی معاملے پر ان طریقوں کو منطبق نہ کیا جائے تو عملی طور پر نظام چلانا مشکل ہے. اس لیے اب بینک کے جزوی معاملات پر مختصراً گفتگو کی جاتی ہے. یہ بات پہلے یعنی بینک کے وظائف بیان کرتے ہوئے تفصیل سے بتائی جا چکی ہے کہ بینک کی تمویل کے 3 طریقے ہوتے ہیں. تمویل کی 3 صورتوں کو شرعی سانچے میں ڈھالنے کے لیے غور کرنا ہوگا کہ یہاں کون سا اسلامی طریقہ تمویل اختیار کیا جائے. تمویل المشارع یعنی پروجیکٹ فائنانسنگ میں شرکت، مضاربہ، اجارہ اور مرابہ سب طریقوں سے تمویل ہو سکتی ہے. اجارہ اس طرح کے مشینری خرید کر بینک اجارے پر دے دے، مرابہ اس طرح کے مشینری خرید کر نفع پر مرابطاً بیچ دی جائے. شرکت اور مضاربہ کو طویل المیعاد تمویل میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تمویل رأس المال العامل یعنی ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ میں خاص معاملات کی حد تک مشارکہ اور مضاربہ ہو سکتا ہے. مثلا بینک جو سرمایہ دے رہا ہے اس سے روئی خریدی جائے گی، اس سے کپڑا وغیرہ بنا کر جو نفع حاصل ہوگا اس میں بینک شریک ہوگا. اور خام مال کی ضرورت ہو تو اس میں مرابحہ بھی ہو سکتا ہے. اوور ہیڈ ایکسپنسز یعنی وہ اخراجات جن کا براہ راست پیداوار سے تعلق نہیں ہوتا، مثلا تنخواہیں، کرایہ جات، بلوں کی ادائیگی وغیرہ، ان میں تمویل بہت مشکل ہے. یہاں اجارے اور مرابحہ کا امکان ہی نہیں. یہاں 2 ہی راستے ہیں. ایک مشارکہ کا طریقہ ہے، جتنی رقم کی ضرورت ہے بینک اتنی رقم دے کر کاروبار کے کسی حصے میں شریک ہو جائے. جب بطور شرکت کے ادارے کو رقم مل گئی تو وہ کاروبار کی کسی بھی ضرورت میں خرچ کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ بلا سود قرض کا ہے. اس میں بینک وہ اخراجات لے سکتا ہے جو اس قرض کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ہوئی ہے. اس میں اصل تو یہی ہے کہ حقیقی اخراجات وصول کیے جائے، مگر ایک ایک قرضے پر ہونے والے حقیقی اخراجات معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس لیے اس بات کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ بینک انتظامی کاموں کی اجرت مثل وصول کر لے. اجرت مثل سے تجاوز نہ کیا جائے. اس کی نظر یہ مسئلہ ہے کہ فتویٰ پر اجرت لینا ناجائز ہے، مگر کتابت فتویٰ کی اجرت لینا جائز ہے. یہاں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کتابت کی اجرت مثل سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے. بینکنگ کا جو نظام ہے اور کاروبار کا جو نظام ہے اس پر اصولی گفتگو مولانا کر چکے ہیں. جو بڑے بڑے دنیا کی اصولی باتیں ہیں، اب عملی تحقیقات میں جن جزئیات سے واسطہ پڑتا ہے اور وہی رات دن پریشان دور ہوتی ہے. لیکن اصول اور کلیات معلوم ہے، مضاربہ مشارکہ کے قواعد اور مسائل آپ کو معلوم ہے تو پھر اس میں پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے مولانا کی دوسری کتابیں ہیں جو 8 جلدوں میں مولانا نے لکھی ہے، اسی کا یہ بھی ایک جز ہے. بعد میں اس کو بھی جز بنایا گیا. اس کے اندر 5ویں جلد کے اندر اور 4تھی جلد میں جو کچھ جزئیات ذکر کیے ہیں، خاص کر کے ایک تو جزئیات ذکر کیے ہیں اور ایک مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ معجلہ، ان کی بہت تفصیل ذکر کی ہے. اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر کس طریقے سے یہ کاروبار کیا جائے اس کی مولانا نے بہت ساری مثالیں دی ہے. اس میں سلم اور استثناء میں کیا فرق ہے، اور اسی طریقے سے مشارکہ مضاربہ میں کیا فرق ہے. بینکنگ کے اس نظام کے اندر اور بھی دوسری جزئیات آتی ہیں، ان میں کیا فرق ہے اس کو بھی مولانا نے ذکر کیا ہے. یہاں یہ کتاب چونکہ پہلی لکھی گئی ہے اس لیے یہاں کچھ جزئیات کو مولانا ذکر کرتے ہیں. اسی میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ بینک کا تو اپنا ایک نظام ہے اور اس کے اندر وہ کاروبار کرتی ہے لیکن براہ راست کاروبار میں شریک نہیں ہوتی. وہ لوگوں کو قرض کے طور پر لون دیتی ہے، چاہے امپورٹ والے کو، ایکسپورٹ والے کو، بل آف ایکسچینج کے طریقے پر، لیٹر کریڈٹ کے طور پر، ایل سی کے طور پر. یہ اس طرح کی تمام طریقے وہ اپناتی ہے. اسی طریقے سے کبھی کسی کمپنی کو ضرورت پڑی اچانک قرض لینے، کیوں ضرورت پڑی تو اپنے ملازمین کی تنخواہ ادا کرنا نہیں ہے، کوئی مشینری لے رہی ہے اس کے لیے، تو ملازمین کی تنخواہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں بھی ہوتی ہے. اب ملازمین کی تنخواہ کے لیے بینک جب اسلامی بینک کی شکل اختیار کرے اور اسلامی کوئی کمپنی، مسلمان کی کوئی کاروباری کمپنی بینک کے پاس جائے گی اور یہ کہے گی کہ ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ تنخواہوں کے پیسے کے لیے مشارکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کاروبار تھوڑا ہو رہا ہے، آپ ایک کاروبار میں ہیں، اس کے ایک جزئیے کو اٹھا کر آپ بینک کے پاس گئے تو اب بینک آپ کو کس طریقے سے آپ سے معاملہ کرے. اس لیے پہلی 2 شکلیں ہیں وہ تو آسان ہے، آپ سن چکے ہیں. تمویل مشارکہ پروجیکٹ کے لیے، کوئی کمپنی پروجیکٹ کے لیے، جیسے دنیا بھر میں بہت ساری کمپنیاں پروجیکٹ کے لیے عموماً چلتی ہے. کوئی نہ کوئی کمپنی کھولی ہے اور کسی نہ کسی طرح کی چیز کوئی بناتے ہیں یا بنی ہوئی چیز کو اس کی ریفائننگ کرتے ہیں، تیل وغیرہ کی، اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں. وہاں تو مضاربہ مشارکہ آسان ہے. کوئی بھی کمپنی بینک کے پاس جائے گی اور یہ کہے گی کہ فلانا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ
हम आपसे रकम लेना चाहते हैं, वो कहेगी कि भाई रकम तो हम नहीं देंगे, मुजारबा मुशारका के अनुमान पर हमसे बात कीजिए, इतनी रकम हम आपको दे रहे हैं, हम मुजारिब रब्बुल माल बन रहे हैं और आप मुजारिब बन रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर बनकर, इस तरीके से। इजारे में भी, इजारे का भी तरीका है। आजकल एक कंपनी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ खरीद रही है और फिर उन मशीनरियों को किराए पर दे रही है। अब वो बैंक के पास जाएगी तो बैंक कहेगी कि इजारे में हम और आप क्या होंगे, शरीक होंगे, या हम खुद खरीद कर आपको इजारे पर दे रहे हैं और आप किसी और को इजारे पर दो और फिर आप मिलकत वाले हो जाओ, बात की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मुराबहतन मशीनरी खरीद कर नफा पर बेची भी जा सकती है। बैंक के पास कैश मनी है और बैंक का एक मरतबा का मामला नहीं है, बार बार है, लोग उसके पास आते हैं, इसलिए जो कंपनी मशीनरियाँ बनाती है वो भी बैंक को कम किराए कम रकम के ऊपर वो चीज़ देगी। उसके मुकाबले में हम और आप जाएंगे या कोई एक आदमी जाएगा इक्का दुक्का, तो उसके साथ वो मामला नहीं होगा। बैंक के साथ तसलसल से मामला हो रहा है, गरीब किस्म के लोग जा रहे हैं, इसलिए वो बैंक को कम कीमत वाली चीज़ देंगे। वो गाड़ी हमें दे रहे हैं तो हमें 6 लाख में दे, बैंक को 5 लाख में दे। अब बैंक को 6 लाख में आपको बेच रही है या किराए पर आपको दे रही है, तो ये बैंक का अपना मामला है, मुराबहा हो सकता है। दूसरा मसला है तमलील रासिल मालिल आमिल। आजकल मार्केट के अंदर ये चीज़ भी चलती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सुन चुके हैं आप, इसके अंदर भी मुजारबा और मुशारका कुछ हिस्से में हो सकता है। मसलन बैंक आपके पास से, आप कंपनी है आपकी कपड़ा बनाने की, रुई आपको खरीदना है या कपड़े के लिए और दूसरी चीज़ें आपको खरीदनी है, आप बैंक के पास गए कि मुझे इसके लिए चाहिए, बैंक कहेगी कि आप इसके लिए मांग रहे हैं तो हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, हमें भी भागीदार बनाइए, ये कपड़ा हम खरीद कर आपको दे रहे हैं, या आप खरीदिए और हम दोनों उसके अंदर जो भी तरीका हो कपड़ा वगैरह बनाकर जो नफ़ा हासिल होगा उसमें बैंक शरीक होगा। वहाँ तो डायरेक्ट चीज़ों में शरीक हुई और यहाँ वर्किंग कामकाज के अंदर शरीक हुई, जो काम आप करेंगे उसमें, यानी हम काम नहीं करेंगे, काम तो आप ही को करवाना है लेकिन रकम हम आपको देंगे। ये भी मुराबहा इसमें भी हो सकता है। कच्चा माल है, उसको ज़रूरत पड़ी धागे की, बैंक किसी और धागे वाले से रब्ता करती है, उससे खरीद लेती है और खरीद करके इसको बेच रही है। बैंक को जो नफ़ा हुआ वो नफ़ा, यानी बैंक ने जितने में खरीदा इससे नफ़ा लेकर इनको बेचा, ये जो बीच की रकम हुई है बैंक का नफ़ा हुआ। अब ये बैंक इस्लामी दूसरे खातेदारों से रकम लेती है हमारे पास से मुजारबा मुशारका, तो बैंक के लिए और दूसरों को इस तरीके से देना भी सही दूसरे लोगों से जायज़ हो। तो चाहे प्रोजेक्टिंग का मामला हो, चाहे वर्किंग मामला हो, काम काज करने का मामला हो, मजदूरों का, इस तरह। अलबत्ता तीसरी चीज़ जो मैंने आपको जिक्र की थी पहले, ओवरहेड, जिसके अंदर मुलाजिमीन की तनख्वाह या ऐसी चीज़ें, मसलन कंपनी के लिए सरमाए की स्टेशनरी की ज़रूरत है, टेबलों की, कुर्सी की या और किसी चीज़ की, जिसको कारोबार में अमूमन नहीं लगाया जाता, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर तो किसी तरीके से बैंक किसी को नफ़ा के ऊपर दे। नफ़ा का यहाँ सवाल ही क्या है, वो तो मशीन, ये तो किफाये ने पाते तो ये खरीद रहे हैं, ये अलग बात है कि किफाये ने पाते तो फिर भी मिन वजीर हुआ वर्किंग काम में, लेकिन ये जो तनख्वाहें हैं उसका तो कोई तस्वुर ही नहीं हो सकता है। तनख्वाहों के लिए कर्ज लो और उसके ऊपर बैंक नफा ले, तो न मुजारबा है, न मुशारका है, सूद ही सूद है, इसलिए किसी शक्ल में जायज़ नहीं है। जब बतौर शिरकत के इदारे को रकम मिल गई तो कारोबार की किसी भी ज़रूरत में खर्च कर सकता है। तनख्वाहें, किराया जात, बिलों की अदायगी, इनमें तब्दील मुश्किल है, इजारे और मुराबाहा का इम्कान ही नहीं है। 2 रास्ते मौलाना ने बताए, एक तो मुशारका, लेकिन मुशारका किसमें, आपके पूरे कारोबार में, जैसे हमारे यहाँ सोना और सोने की बनी हुई चीज़, उसका बाहमी तबादला हुआ तो जितना सोना इसमें भी, सोने के बदले में तो सोना, और बाकी जो चीज़ है वो चूँकि दूसरी धात है और इसका तकाबुल अशिया सिक्का में से वो नहीं है, तो कभी बेसी से इनका तकाबुल जायज़ है। इस तरीके से यहाँ पर भी ये समझा जाए कि ये रुपया मैं तुम्हारी तनख्वाह के लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे टेबल कुर्सी बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बिलों की अदायगी के लिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ बराह रास्त शरीक हो रहा हूँ। अब चाहे उस शिरकत वाले माल में से तुम क्या करो, जो करना हो वो करो, लेकिन ये है कि हमारा तुम्हारे साथ टेबल में मुशारका नहीं है, बिल की अदायगी में नहीं है, तब से कारोबार में मजमूई तौर पर है। अब तुम इस रुपये को जिसमें भी लगाओ इसके एतबार से होगा। दूसरा तरीका बिलासुदी कर्ज का, कि हम आपको बतौर कर्ज के दे रहे हैं, कर्ज के दे रहे हैं तो बैंक का दिल करो रुपया ऐसे ही मगर क्या कहे, बैंक ये तो इस्लामी बैंक अगर ये सबको देता रहे तो फिर मुजारबा मुशारका ही नहीं होगा, कर्जा ही कर्जा चलेगा। किसी भी बैंक के मुसलमानों की चलती है, जैसे मुस्लिम फंड और उसमें भी चलती थी, देवबंद में भी अभी चल रही है, जमीयत की और भी कई जगहों पर चलती होगी, लेकिन ये सिर्फ क्या करती है, आपके पास
एक तो मुसलमानों को किसी को छोटे मोटे कर्जे देती है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के कर्जे देती है, लेकिन उसके बदले में वो आपके पास से सोना गिरवी रखती है और कहते हैं कोई देगा नहीं, और मैं दे रहे इतना बेवकूफ़ी बनने का नहीं है। अब वो सोना लेती है, आपका सोना लिया और आपको असल रकम की 75% रकम आपको देंगे, पूरी 100% नहीं देंगे, या 85%, 80% जैसा भी दे। जमीयत के अंदर 75% यहाँ भरूच में चलती थी जब मुस्लिम फंड था तो। अब उसमें क्या करते हैं वो, आपको ये दिया और सर्विस चार्ज आपके पास से लेना, अनुमान उसका सर्विस चार्ज, और उस सर्विस चार्ज में 50,000 का कर्जा है तो उसका कागज़िया अलग कलर का बिल होगा वो, 50 से ऊपर वाला है तो अलग कागज, 75 से ऊपर वाला है तो असल चीज की जितने फीसद आप उनके पास से चीज रखकर कर्जा लेंगे, ये कागज का कलर भी अलग है, कीमत भी अलग है। ये फॉर्म खरीदना है तो इस फॉर्म की कीमत 500 रुपये, इस फॉर्म की कीमत 200 रुपये, इसकी कीमत 250 रुपये। अब ये काबुल क्यों हुआ है, सोनी की जाती से, लेकिन फिर भी कुछ कहा ने इसकी गुंजाइश दे दी, लेकिन मौलाना ने उसको उजरत मिस्र कहा कि आपको जितना खर्चा हो रहा है। अब आप ये मत देखो कि इसको 75,000 दिए हैं, ये अगर हम किसी को मुजारबा पर देते तो इतना नफा होता, इसको 50,000 दिए हैं तो इसके हिसाब से मुजारबा में नफा होता। अब ये मुजारबा तो नहीं ले रहा है, कर्ज ले रहा है, तो इसके पास से इतने कर्ज का इस तरीके से वसूल किया जाए, उजरत मिस्र ली जाए। कागज की तब्दीली करके इस तरीके की बेवकूफियाँ लोगों को उल्लू न बनाया है, लेकिन करते हैं इसे। इसीलिए बम्बई में जब बरकत ने कायम की, शरीफ साहब ने यही फरमाया कि सर्विस चार्ज ही मत लो, आप किसी के पास से अपनी रकम रखवाते हैं आपके पास अमानत के तौर पर, या अपनी रकम रखवाते हैं कारोबार में, तो उसका तो आपको भी नफा मिलेगा, उसको भी नफा मिलेगा। लेकिन ये जो कर्ज देने का सिस्टम है उसमें क्या किया जाए, तो मौलाना ने यही फरमाया कि इसके अंदर कोई पैसा लोगों के पास से सर्विस चार्ज के उन्वान से न लो। तो क्या करो, मुसलमानों को आमदाद करो कि भाई आपको ये रकम लिल्लाह है, ताकि ये रकम आप दूसरों को देने के अंदर इस्तेमाल करो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा मस्जिद मदरसे के लिए तो करीब की मस्जिद होगी तो भी बनाने के पैसे दे देगी, लेकिन उम्मत को हराम से बचाने के लिए, हलाल तरीकों के लिए यह आदत अभी उम्मत ने नहीं डाली है। स्कूल के लिए पैसे लेने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसमें भी मौलवियों को ही वापरना पड़ता है, वरना स्कूल वालों को नहीं मिलते हैं। हमारे गांव के है गुजरात के एडिटर, उन्होंने मुझे साहब कहा, जिस तंगारी साहब ने, कि आप लोगों को ही पैसे उम्मत देगी, आज भी हम पर भरोसा नहीं है दाढ़ी मुद्दों पर, उम्मत को आप लोगों पर ही। इसलिए अब मौलवियों को जरूरी है कि उम्मत के आखिरी एतमाद पूरी ठेस न पहुँचाए। तो ये अब इस तरीके से उजरत मिस्र ली जाए। जैसे यही मुफ्ती साहब है, बड़ा फतवा मुश्किल फतवा हो तो उसकी उजरत ज़्यादा है, ज़्यादा रोशना इस्तेमाल हुई है, अगर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो ये भी गड़बड़ है, सही नहीं है उजरत मिस्र। लेकिन इसके लिए भी मदरसों ने बंद कर दिया है, मदरसा खुद ही कागज देता है मुफ्ती को भी, तुम इस कागज को इस्तेमाल करो, बरमिरिया भी मदरसे के उन्वान से दे दो, इसमें तो मदरसे का दारू लिखता है। आम मतलब तो लोगों को कहते हैं कि दो, कुछ मदरसों में ये भी है कि बगैर जवाबी लिफाफे के आपके फतवे का जवाब नहीं दिया, इंफरादी मुफ्ती हो उसके लिए भी मदरसा भी कह सकता है ज़रूरत आपकी है तो ये भी मदरसा पैसे दे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो मुफ्ती फतवे न पहुँचाए, ये मुनासिब नहीं लग रहा है। ये 3 की कीमत में 2-4 रुपये आपकी मौलवी की जेब से भी जाना चाहिए। हमारी एक दोस्ती है, इब्राहिम भाई बड़ी उम्र के हैं, बीमार है बेचारे, उन्होंने सुना है कि एक मरतबा इनकी अपनी मस्जिद के लिए इन्होंने एक मौलाना को इस्तेमाल किया, ले गए लोगों के पास, मौलाना ने बहुत अच्छे तरह बयान दिया तो काफ़ी रकम आ गई। इन लोगों के दिल में ख्याल आया कि मौलाना के पास भी जाना चाहिए, तो हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि बोलो बयान नहीं बोलो, उससे भाई भाई ले आए। यानी मौलवी देने के लिए नहीं होता है, मौलवी तो लेने ही के लिए, तस्वुरात सही नहीं है। हमारे अगले बुजुर्गों ने अपनी तरफ से ही अदा किया है कुछ न कुछ। अब मौलवी की 10,000 तनख्वाह है तो 10 रुपये 15 रुपये भी तो अल्लाह के दिन में दे सकता है, लेकिन ये तस्वुर हो कि हम तो देने के लिए आए ही नहीं है, हम सदक़ात वाली दुनिया में ही हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। कुछ न कुछ सखावतें लोग करते भी हैं, नफी नहीं है इसकी, लेकिन ये तस्वुरात अहले इल्म सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए इन तस्वुरात को भी ख़त्म किया जाए। जो ख़त्म हो रहे हैं उनको नए लाए जाएं, और जो नए गलत आ रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो उजरत मिस्र, इसलिए सर्विस चार्ज के उन्वान से मुस्लिम बैंकों में वो तमाम काम हो रहे हैं जो आपको मैंने कहा, हलाल का जानवर ज़बह किया हुआ उसकी कीमत ज़्यादा है, और वो मुफ्ती लोग ये कहते हैं कि चूँकि हमको सब जगह जाना पड़ता है देखने के लिए,
हमारे लोग और भी बड़ी गाड़ी लेकर जाते हैं, उनका नाम ही BMW के क्या है, इस तरह का नाम ही वो मौलाना का इंग्लैंड में हो गया। तो आए नहीं यहाँ पर, तो मैंने उनसे मछली की बात की। मैं इनको नहीं जानता था कि ये कौन है। उन्होंने खुद कहा बाद में कि मैं इत्तेफाक से वो वहाँ गए, जिनके पास से पैसे लेते थे वहाँ जाकर तारीफ किया हमारे। तो मैंने उनको कहा कि तारीफ करना तो अपनी जगह पर, उनको जो मसला मैंने पूछा उसका जो गलत जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं है हलाल गोश्त में और हराम गोश्त में। हालांकि हलाल गोश्त काफ़ी महंगा है। जिसने पैसे दिए उसने खुद मेरे सामने इकरार किया कि इनको हम पैसे इतने हर महीने देते हैं, और उनका नाम ही BMW हो गया कौन सा का, उसी गाड़ी में फिरते हैं। तो ये सर्विस चार्ज, उजरत मिस्र, इस किस्म की चीज़ें अहले इल्म को और फिर हलाल का सिक्का हिंदुस्तान में भी है। एक जमात ये साहब को अभी कारोबार करना था फॉरेन के अंदर, तो उन्होंने वहाँ से मेरे ऊपर एक कागज़ भेजा कि ये हिंदुस्तान में कोई कागज़ था जिसमें हलाल का सिक्का है। तो मुफ्ती साहब को हम नहीं पहचानते थे, मुफ्ती मुस्तफा साहब खैर थे। मैंने उनको कहा कि आप इसकी तहकीक करें, ये कौन है क्या है। उन्होंने हिंदुस्तान है, वहाँ मौलवी लोग पूरे ठीक रहते हैं। शिमाल में हमारे यहाँ थोड़ी गड़बड़े होती है। मौलाना सैयद मोहम्मद राबे साहब ने जब उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया तो वहाँ के मुसलमान और शिमाल के मुसलमान, हुकूमत यहाँ रही है नहीं, इसलिए जज्बाती होते हैं। पाकिस्तान मांगा किसने, यहाँ वालों ने, उन्होंने तो मांगा ही नहीं था। वहाँ के यूपी और बिहार के बेचारे वो वहीं हिजरत मुहाजिर बन के ही रहे, उनको मुहाजिर ही रखा गया। खैर चंद को रखा गया है, बाकी दूसरों को अहदे भी दिए। जियाउल हक हिंदुस्तानी से गए हुए, तो जितना भी कुछ से गया हुआ है, वज़ीर आज़म बनाए गए, ये है। लेकिन ये है कि इसका फ़र्क है। तो वहाँ जब तहकीक की गई तो माशाल्लाह वो जमात हुई थी कि सही तरीके से वो हलाल और हराम के सारे इंतजाम करते हैं। दरामद में इस्लामी बैंकों का किरदार। लेकिन इस किस्म की चीज़ों में बेहतर ये है कि अलग से फ़ंड कायम किया जाए, और उस अलग फंड से ही, अब जैसे अंजुमन है, अंजुमन में कुछ खर्चे वो होते हैं जो लिल्लाह होते हैं। अब अंजुमनों के पास तो अमूमन लोगों की कुर्बानी की है, लोगों की आती है, ज़कात की हुकूमत आती है। अब अंजुमन को अपना हिसाब किताब लोगों के सामने पेश करना है। हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ, परसों पहले मौलाना थे सदर उसके, उन्होंने यही कहा कि पेचीदगी ये है कि 20,000 रुपये खर्चे के होते हैं, और वो है नहीं। हमने एक मौलवी साहब को इंग्लैंड में ही तैयार किया कि ये मौलवियों की तंजीम है अंजुमन, और इसमें कुछ गड़बड़ हुई और लोगों की यहाँ बदनामी हुई तो अकेले उनकी नहीं होगी, हम सबकी होगी, और हिसाब किताब सब शफाफ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से 30,000 रुपये देता हूँ, उन्होंने दिए, फिर छपवाया गया। फिर आइंदा सब लोगों की तरफ से रकम ज़्यादा आई थी, तो सब काफ़ी इन लोगों का तो शफाफ मसला है। तो मैंने वो मौलवी साहब को कहा कि आप डर रहे थे, अल्लाह पाक ने आपकी शफाफियत जाहिर हो गई तो लोगों की तरफ से इसका, और आज वही तरक्की इसके बाद हो रही है। तो ऐसा होता है कि इन चीज़ों के अंदर ज़रूरत पड़ती है लिल्लाह हुकूमत। उम्मत का एक तबका ऐसा होना चाहिए जो इस किस्म की चीज़ों में भी दे, जिसके अंदर उम्मत के दूसरे बहुत सारे काम हैं। आप एक फ़कीर को सीधे बराह रास्त रकम देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी ज़कात आपने उनको दे दी, लेकिन जो तंजीम उस ज़कात को मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम कर रही है, या उसको मेडिकल के उन्वान से और दूसरे उन्वानात से उम्मत की दूसरी ज़रूरतों में सर्व कर रही है, और इंफरादी नहीं इज्तिमाई उसका नफ़ा है, उमूमी है, तो उसको अगर इस किस्म की उजरत वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मौके पर इनके लिए ये मुनासिब है। मसला आया उजरत का, अंजुमन की सेक्रेटरी जिम्मेदार को उजरत दी जाए या नहीं, तो हजरात ने कहा कि नहीं, और जो नहीं ले रहे थे अब तक उन्होंने भी कहा, मैंने कहा नहीं, आपको भी बरसों की दी जानी चाहिए। अब ये तंजीम मिलकर करेगी कि दे के न दे, लेकिन ये है कि उसूलन ये, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर नफ्स और शैतान दिल में कोई बात डालेगा, इसलिए तनख्वाह होनी चाहिए ताकि उसकी रोशनी के अंदर आप काम करो। कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है रिक्शा की और किसी चीज़ की, तो फिर पैसा आप अपनी जेब से कब तक देते रहोगे? मालदार सेक्रेटरी हो तब भी कब तक देता रहेगा? कभी ना कभी तो होगा, क्या तो हमारा गजाना चाहेगा। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ों के अंदर अलग से इस तरह की उजरती मिसल वगैरह ये शक्लें न अपनाई जाए, अलग से ली जाए। बिरादरों में इस तरह की कोशिश की जाती है तो लिल्लाह हुकूमत मिल जाती है। दर आमद में इस्लामी बैंकों का किरदार। पहले ही बताया जा चुका है कि मौजूदा निज़ाम में बैंक का दर आमद और बरामद में भी बड़ा किरदार होता है। दर आमद यानी इंपोर्ट की सूरत में बैंक एलसी खोलता है, इस पर अपनी खिदमत की उजरत, कफालत की उजरत और कर्ज हो तो उस पर सूद भी लेता है, जैसा कि तफसील पहले गुजर चुकी है। शरई नुक्ते नज़र से कफालत की उजरत और कर्ज पर सूद लेना शरन जायज़ नहीं, तो एलसी के मुतबादिल दो चीज़ें हो सकती हैं। आप सुन चुके हैं एलसी खुलवाना होता है, उसके बगैर आपका कारोबार होता नहीं है।
खास करके बरामदत में बड़ा किरदार होता है। दरामद की सूरत में एलसी खुलवाता है इंपोर्ट के लिए, माल अपना पहुंचाना है दूसरी जगह पर तो भी ज़रूरत, वहाँ से माल लाए तो उसको ज़रूरत, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है माल के लिए एलसी की। तो आया एलसी, ये क्या है? एलसी ये बैंक की तरफ से आपकी तरफ आपके बारे में कफालत है। आपका बैंक गारंटी देता है उस बैंक को और उस बैंक के वास्ते से उसके बेचने वाले को, जहाँ से आप माल ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों तरफ से इस तरीके से। लेकिन बरामद में कम और दरामद में कफालत का पहलू ज़्यादा रहता है, इसलिए कफालत की उजरत और कर्ज हो तो उस पर सूद भी देता है। तीन चीज़ें हुई बैंक, एक तो अपनी खिदमत की उजरत है, ये तो शरीयत एतबार से जायज़ होता है, लेकिन कफालत की उजरत फिक़ह में जायज़ नहीं है, इस्लामी शरीयत के अंदर कफालत ये एक रज़ाकाराना अमल है, ये इस तरह का नहीं है आप इजारा का वाला मामला करो, बेचने का मामला करो, लेकिन आप किसी की तरफ से कफील बनते हो तो ये 100% आपकी तरफ से उसके हक में एक एहसान करना होता है, इसीलिए तो उसके सवाब भी ज़्यादा है। तो कफाला है, हवाला है, जो भी दोनों की नौइयतों में फ़र्क है उसकी मजबूत रखते हुए, लेकिन कफाले की उजरत नहीं। और एलसी खाता खुलवाने में बैंक हमारे पास से जो कुछ खर्चा लेता है वो किसका लेता है? कफालत का, और कफालत की उजरत जायज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी इस्लाम के अंदर होती है जो ज़ाहिर में तो लोगों को अजीब लगती है, लेकिन जब पूरे निज़ाम को देखें तो उसके बाद उसका पूरा हकीकी तौर पर, अमली तौर पर मसला समझ में आता है। कल एक साहब ने कतीम भेजा संदेश अखबार का, मौलाना ने, और उनको किसी मुसलमान ने भेजा था, उस मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम ने भेजा था, लिखने वाला मुसलमान है, संदेश में जो मजमून उसने लिखा कि दत्तक का अमल दुनिया के तमाम मज़ाहिब में है, लेकिन मुसलमानों में दत्तक लिया ही नहीं जा सकता है, इस तरीके से। और लिखने वाला खुद मुसलमान, और वो इस्लाम पर इश्काल कर रहा था दत्तक, तो उन्होंने मजमून भेजा, पढ़ा हमने उसको, तो बात है वो तो सही है कि यकीनन इस्लाम में नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? और दत्तक से जो मसाइल हल होते हैं उन मसाइल को इस्लाम ने हल कर दिया है। दत्तक इसलिए, दत्तक जानते हैं नहीं, ले बालक, एक तो एडॉप्ट करना होता है, किसी तालिब इल्म को 9 साल का खर्चा दूँ, ये दत्तक नहीं है। अगर से बोलते हैं कि फलानी संस्था है, फलाना ने दत्तक ली, तो अंग्रेजी में यही बोलते हैं, लेकिन वो दत्तक ले ये एडॉप्ट करना इंग्लिश में बोला जाता है, और ये वक्ती और आर्जी तौर पर इतनी मुद्दत के लिए कमा। उसके मुकाबले में ले बालक का मतलब होता है ये मेरा बेटा है, और उसके साथ मामला बेटे के होंगे, मरने के बाद विरासत उसको तकसीम की जाती है, उसको बेटा बनाकर अब शरई नुक्ते नज़र से इल्लत और हुर्मत इस्लाम में आती है। हिंदुओं में तो कोई, गैर मुस्लिम में तो ये मसला ही नहीं आता, यूरोप में भी किसकी किससे शादी, हमारे यहाँ तो जब वो बेटा होगा तो इसकी बेटी के साथ इसका निकाह जायज़, इस आदमी की हकीकी बेटी है इसके साथ इस लड़के की शादी जायज़ नहीं होगी, लड़की ली है तो उसके बेटे के साथ उसका निकाह जायज़, उनके यहाँ कोई हरज नहीं है, इसलिए जिसको लिया हो। इसलिए हम कहते हैं कि दत्तक के अंदर ले बालक लेने में ये सारे मसाइल आते हैं। दूसरी बात, ये अल्लाह पाक की तरफ से बाप होना खानदानी एतबार से, और फिर उसके जो हुकूक और उसूल बतलाए गए, बेटा होना, उसकी अदब व तरबियत के जो कवायद जिक्र किए गए, ये हकीकी बेटे और हकीकी बाप के साथ वाबस्ता है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, उनको इनके बाप के अलावा नामों से सुने। जिन्हें आप आए कि तफसीर हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद वाला जो मसला पेश आया, हज़रत ज़ैद आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे, जब कुरान की आयत नाज़िल हुई तो ख़त्म हो गया। तो मुतबन्ना के क़वाइद क्यों जिक्र किए गए? तो उस वक्त इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ये बिल आया था, उस वक्त मुसलमानों ने मुखालफत की थी, और इस किस्म के चंद मसाइल आए तौहीद 1972 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ का बुनियादी कायम क़याम अमल में आया हज़रत क़ाज़ी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ा। तो बम्बई में गए थे, सबको देवबंदी पानसरियों को एक करना मुश्किल, पहले तो देवबंदी एक होते थे, अब तो देवबंदियों को भी एक करना मुश्किल है। तो उस वक्त क़ाज़ी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बम्बई में बरेली के बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास गए और उनके पास जाकर अपनी टोपी रखी और ये कहा कि दीन के लिए भीख मांगने आया हूँ, इस्लामी शरीयत के लिए। तो वो भी फिर उसको था ईमान बिल्कुल 100% नहीं जैसे, तो फिर वो आए और उन्होंने ही क़ाज़ी साहब की सदारत के ऐलान में सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर काम किया, और फिर उसके बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर देवबंदियों को सदर बनाया गया, और अभी भी देवबंदी सदर है हज़रत मौलाना राफ़े साहब। फिक्र तो एक है हमारा, नदवी और देवबंदियत का जो फ़र्क है वो थोड़ा निसाब तालीम और फिर उसके नतीजे में कुछ फिक्री भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन ये जुज़वी है। तौहीद में हम सब मुश्तरक है, और भी दूसरे मसाइल हैं। और फिर नदवा उसकी भी 2 किस्में हैं, एक तो अल्लामा शिबली वाला था और एक हज़रत सुलेमान नदवी वाला है, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के
खलीफा भी बाद में हुए, और जब जा रहे थे तो शोर हो गया पूरे हिंदुस्तान में कि अल्लामा जैसी शख्सियत, और हकीकत में अल्लामा है। शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सीरत में हिंदुस्तान में इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, वो वही कह सकता है जो सीरत की वादियों में घुमा हो, हमारा जैसा नहीं। तो शेख को ये नज़र आया होगा पेचीदा जुज़वी मसाइल के अंदर कि अल्लामा ने वो सीरत के मसाइल को कैसे हल किया। खैर, तो जब आप बन रहे थे अल्लामा, तो आपने कहा कि अजीब लोग हैं, एक तरफ मुझे अल्लामा भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ इश्काल करते हैं कि थानीयत के यहाँ देवबंदियत के यहाँ मुरीद हो गए। मुरीद का मतलब तो हारना ही हुआ नहीं, खैर वो हारना नहीं है, वो जीतना ही है, लेकिन सजा ये है। तो ये इस तरीके का, तो आपने उसके जवाब में कहा कि अजीब लोग हैं, मुझे खुद कह भी रहे हैं अल्लामा, यानी वो खुद मुझे अपने से ज़्यादा समझ रहे हैं और फिर मशवरा मुझे दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अल्लामा शिबली ने जो कुछ बातें सीरत में इस तरह की लिखी थी जो उसूलन सही नहीं थी, तो उसको आपने अपने नस्ल पे दिया और उन सारी चीज़ों को रद्द किया, ऐलान किया उसका, और फिर दोबारा सफाई को इन चीज़ों को निकाला लिखा। तो उस पर बड़ा हंगामा हुआ। तो फतवा में पूरी तब्दीली अलग से आई है। अल्लामा आए, इसी तरीके से हजरत मौलाना अली मियां साहब के बड़े भाई आए, वो भी रती के हजरत आमिर रहमतुल्लाह अलैहि से बैठ थे, और फिर उसके बाद अली मियां आए तो पूरे मुकम्मल देवबंदी, वहाँ इलियास साहब, मौलाना अब्दुल कादिर राय पूरी सारे बुजुर्गों से सोहबत याफ्ता। इसलिए वो कह भी रहे हैं, मौलाना सलमान साहब ने एक जगह पर लिखा है कि अब जबकि ददवाही देवबंद हो चुका है, जितना इन्होंने लिखा है, तो अब निसाब में क्या फर्क है, क्योंकि वही पढ़ाए जो ये पढ़ा रहे हैं, हमारा पारी भी तो वही कर रहा है। वो तहकीकात में वो रिसर्च जो कुछ लोगों ने किए थे, अल्लामा जैसे लोगों ने, वो खाल खाल ही करने वाले निकले, उसके बाद वहाँ भी बंद बना गए। तो दर आमदाद के अंदर कफालत की उजरत, अब कोई ये कहे कि एक आदमी कफील बन रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी उजरत नहीं, तो अभी मैंने आपको उजरत में लगा इसीलिए कहा तनख्वाहदार मुलाजिम रखे जाए, कफालत क्यों ले रहे हो आप, आखिरत के लिए ले रहे हो, दुनिया के लिए नहीं। अगर दुनिया के लिए लेना है तो कफालत का मुनज़्ज़म अच्छा जुमला नहीं है जिसको बदनाम करो आप ये कहो कि मैं तुम्हारे पास से पैसे लेकर ये काम कर रहा हूँ, इस सूद के ऊपर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो वाज़ेह हो जाएंगे ये सूद पर देना। लेकिन कफालत एक बहुत बड़ा अमल है, इसलिए हदीस शरीफ में फजीलतें आई। आप अपने पैसों से, अपने अमल से किसी के कफील बन रहे हैं, एक तो सऊदी वाला कफील है, वो नहीं है, यहाँ कफालत इस्लामी कफालत मुराद है, लफ्ज़ी इश्तिराक नहीं है। मौजूदा इस्लामी बैंक तो उसको उस पर सूद भी देता है, बैंक ये भी करता है, इस्लाम में ये दोनों चीज़ें जायज़ नहीं है। तो अब एलसी खाता कैसे खुलवाया है, उसका जवाब दिया कि एलसी खाते मुतबादिल में दो चीज़ें, एलसी पर जो उजरत ली जा रही है, ये एलसी का मतलब ये है कि हम तुम्हारी तरफ से कफील हो रहे हैं। दो चीज़ें अलग अलग उजरत है, एक तो एलसी कागजात के लिए जो कार्रवाई हो रही है उसकी उजरत, वो तो किसी भी काम में कोई मेहनत करता है तो उसकी उजरत लेना चाहिए। और एक ये है कि एलसी में जो मफहूम है कि हम आपकी तरफ से सामने वाले बैंक के लिए कफील बन रहे हैं, इसके ऊपर उजरत तो ये जाएगी। तो दो चीज़ें अलग अलग याद रखना। मौजूदा इस्लामी बैंकों में आमतौर पर एलसी के मामलात मुराबाहा के तौर पर अंजाम पाते हैं। वो इस तरह के जिसको दरामद करना था, बैंक उसमें वकील बनने की बजाय खुद इसको खरीद कर दरामद करता है। ये इस्लाम में है। यूरोपीय निज़ाम जो था उसमें कफालत की एलसी की भी उजरत अलग से ली जाती है, उसका चार्ज अलग से लिया जाता है। हम कह रहे हैं कि एलसी का चार्ज अलग से मत लो, कागज़ का तो ले सकते हैं, लेकिन उसका जो मफहूम है, माना जो है उसका कि आप कफील बन रहे हैं तो कफालत के पैसे हम आपको नहीं देंगे, आप उसको नफ़ा में शामिल कर दें। आप नफ़ा जितना, यानी जब आप इस्लामी बैंक होगी तो बैंक सामने वाले से रुपया लेगा, ये बैंक ऐसा नहीं करती है, ये तो इस्लामी बैंकों के लिए फरमा है, इसलिए कि ये बैंक तो रुपया देकर छूट जाएगी, उस पर सूद ले लेगी, चार्ज आपके पास से अलग अलग किस्म की लेगी कि आपकी रकम वहाँ पहुँचाई, ये किया वो किया, आपकी तरफ से कफील बने, उसका चार्ज मानवी व्यय की भी और मानवी उजरत की भी पैसे आपसे वसूल करेगी। इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, इसलिए इस्लाम में उसका तरीका दूसरा अपनाया गया है। इस्लामी बैंकों को ये कहा गया है कि तुम जो नफ़ा ले रहे हो, यानी तुम माल तैयार करवाने के पैसे दे रहे हो, तो पैसे किस तरीके से दोगे, सिर्फ पैसे तो कर्ज हुआ, तुम उनको कहोगे कि ये पैसे दे रहा हूँ मैं, और तुम दोनों कारोबार में हैं। अब आप 5% नफ़ा अपना कर सकते हैं ज़्यादा, कि हम ये भी करते हैं इसलिए हम ये ले रहे हैं, ये भी करते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेना चाहिए और मुराबातन इस शख्स को बेच देता है जो दरामद करना चाहता है। एलसी की फीस वगैरह को मुराबा की शरह में शामिल कर लेता है। मुराबा की शराइत मलूज रखी जाए तो उसूली तौर पर इसमें कोई कबात नहीं करेगा। जो मुफ्ती सारे उसूल कवायद जानता हो, या बैठे बैठे नवरे नफरत वाले बातें बजाने वाले, वही मसाइल की हकीकत को, ये तो नतीजे हैं, असल तो बहुत सारे मसाइल जाने, उसके बाद मौलाना असद हाजिर के फतावा की मसाइल की रोशनी के अंदर इसको हल कर रहे हैं। ताम अमलन ये तरीका पसंदीदा मालूम नहीं होता, उसकी कई वजूह है। एक ये कि इस तरीके में बहुत से मराहिल पर
2-3 दिन पहले एक जगह से आया थे, सुलह की कमेटी कोई बनाई हुई है और उसके लिए काम कर, मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़्यादा स्थिरता हमारे पास आते हैं आपके इलाके के, तो चाहे गुजरा ना हो, उसके अंदर यही चीज़ें आती है। इसलिए बहुत गहराई से देखना है, वहाँ मौलवियों के चक्कर होते हैं कारोबार के, उसको समझना मौलवी के लिए बहुत मुश्किल होता है। अहमियत बतलाना चाह रहा हूँ इलाकों की, नए नए मसाइल आए हैं तो पीछे न रहें। एक ये कि इस तरीके में बहुत से मराहिल पर के घूमने से नहीं आएंगे, अपनी बात कोई निगरान न हो तो अपनी निगरानी खुद करनी है, कोई आपकी करे कि न करे। ये क्या हुआ कि आपकी निगरानी करे तो आप मुफ्ती बनो, इसका मतलब ही क्या हुआ? PhD की दुनिया रोटला कमाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं और खुद बखुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं हिंदुओं के अंदर मुस्लिम में रोटला के लिए, और ये आखिरत का मसला है, लेकिन लोग निगरान की मुंतज़िर रहते हैं और अफसोस की चीज़ है। एक ये कि इस तरीके में बहुत से मराहिल पर मुराबाहा की शराइत पूरी करना मुश्किल होता है और बसा औक़ात अमलन बहुत सी शराइत पूरी भी नहीं होती है। दूसरी वजह मुराबाहा जिसको कहा जाए वो हकीकत में है नहीं, इसलिए कि बैंक मुराबाहा के लिए थोड़ा कर रहा है ये सब। बैंक तो इस्लामी नाम दे दिया है तो अब उससे बचने की शक्लें अपना रहा है कि किसी तरीके से हमें बैंक इस्लामी बैंक का कहा जाए, तो अब उसमें एक माहिर आलिम का होना ज़रूरी है। मौलाना सैदुल्लाह साहब ने इस्लामी बैंकों के सिलसिले में इसीलिए मौलवियों को ट्रेनिंग देने की बात की कि अगर बैंक कायम हो तो वहाँ पर वो उसूल और ज़ाब्ते बतला भी तो सके, बतलाने वाले भी जानने वाले भी होने चाहिए। इसलिए इनको बैंक का कोर्स और बैंक वालों को इस्लाम का कोर्स, दोनों चीज़ें जरूरी है। अब ये मुराबाहा की मसाइल और जुजियात को जानते नहीं है, और जिसको मुमारसत न हो या प्रैक्टिकल जो मसला हो वो सिर्फ किताबों के अंदर देखने से हल नहीं होता है। मशहूरी है, मुल्ला अली कारी गए और कोई भूल हुई छोटी सी, एक साहब ने कहा कि मुल्ला अली कारी ने लिखा है अपनी किताब में क्योंकि ये मसला इस तरह नहीं है उस तरह है। मुल्ला अली कारी को अफसोस हुआ कि मेरे ही तस्नीफ को दूसरा पढ़कर बतला रहा है मुझे। प्रैक्टिकल चीज़ों में ऐसा होता है। अब हज के लिए जाए, एक ही मरतबा पहली मरतबा गए तो कितने लोग से बढ़ेंगे? मसाइल शरीयत न जानने से तरतीब में गड़बड़ आ जाती है। दूसरी वजह में भी इस तरीके से होगा, इसलिए हम इन मुसलमान पढ़े लिखे बैंकिंग के जो मैनेजमेंट के जो जिम्मेदार हजरात हैं उन पर तहमत नहीं लगाते, लेकिन वो शरई मसाइल से वाकिफ नहीं, और है वो मसाइल इतने पेचीदा है कि उनको जानना भी बहुत मौलवी के लिए कारेदार, तो इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए बोला जाता है मुराबाहा, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ मुराबाहा होता है। प्रैक्टिकल तौर पर शरीयत में मुराबाहा के जो उसूल और ज़ाब्ते बताए वो नहीं होते हैं। इसलिए इस्लामी बैंक के मुराबाहा के उन्वान से ऐसी खाता खुलवाने करती है तो ज़रूरी होगा मुस्लिम बैंकों के लिए कि वो मुराबाहा के उसूल और ज़ाब्ते जाने, उसको अपनी यहाँ लिखा हुआ बतलाए। मौलवी को भी ज़रूरी है, आप जब फतवा देते हैं खास करके मामला के जो मसाइल है जो ज़्यादा मुस्तहज़र नहीं होते हैं, निकाह तलाक के मसाइल तो कुछ भी रात दिन जाते हैं या प्रैक्टिकल उसका होता है, लेकिन बै के मसाइल मौलवी की प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए जब कोई इस किस्म की चीज़ें पूछते हैं तो हम लोग एकदम से सवाल जब पूछता है तो ये नहीं कि फटाफट जवाब, आपका इल्म इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि किसको बाहर निकल जाओ। खामोशी भी बहुत बड़ा इल्म है, सोचना गौर फिक्र करना ये भी बहुत बड़ा इल्म है, और ख़ास करके जदीद मुस्तहद की मसाइल में तो और आपके लिए ज़रूरी होता है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ तक बैंक का उस चीज़ को खरीद कर मुराबाहा करना महज एक मसनूई कार्रवाई है, इसलिए कि दरआमद कुनिंदा पहले बाय से पूरा मामला तय कर चुका। देखो तुम हमारे एक शख्स बैंक के पास गया, उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। बैंक ने पूछा कि क्यों? तो फलानी कंपनी से मेरा कारोबार हो रहा है और मुझे माल तैयार करके देना है। वो कहेगी कि माल तैयार करके देना है, इस्लामी बैंक है, सेक्युलर बैंक में तो आप जाएंगे तो लोन ले लेंगे और आपको सूद देते रहना है, लेकिन इस्लामी बैंक के लिए तो सूद पर आपको देना जायज़ नहीं। तो इस्लामी बैंक क्या करे, आपको ऐसे ही कर्ज दे तो बैंक खत्म हो जाए, और जिन्होंने पैसे रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? अमानत के लिए रखे तो ठीक है, लेकिन अमूमन अमानत के लिए लोग ठीक नहीं रखेंगे। तो इस बेचैनी से, इस परेशानी को हल करने के लिए बैंक ये करता है कि चलो हम तुमको ये कर्जा दे देते हैं, लेकिन ये रुपया हम तुम्हें देते हैं या तो माल खरीद कर हम तुम्हें देते हैं, मशीनरी की ज़रूरत है वो मशीनरी खरीद कर हम तुमको देते हैं, और नफ़ा उधार और नकद की जो कीमत है उसका फ़र्क ये भी जायज़। लेकिन इस्लामी बैंक जब एक जगह से दूसरी जगह माल हो तो खरीदने वाले ने दूसरी जगह बेचने वाले से माल का सौदा किया, अब उसको ज़रूरत पड़ी है आपसे रुपया लेने, बाय को या मुश्तरी को, दोनों में से हर एक को ज़रूरत पड़ती है। अब वो जब आपके पास आया है, आप उसको ये कहो कि हमें नफ़ा में शरीक करो, तो या ये कि हमारे नाम पर ये पूरा सौदा कर लो, तो बाय तो दूसरा ये मुश्तरी है, या ये बाय है और दूसरा मुश्तरी। आपस में जो मामलात होते हैं खरीदने फरोख्त करने की, तो इन दोनों के दरमियान हुए हैं। अब बैंक ये कहे कि नहीं हम है, बैंक ये करे कागजात के अंदर लिख दे अपना नाम, तो सामने वाला भी इसको कबूल नहीं करेगा।
बैंक को कहेगा कि आप तो बीच में वाया ही है, असल तो मेरा उनसे कारोबार है। हाँ, वो कहीं गड़बड़ कर दे आइंदा कल तो उसकी बुनियाद पर आपको बीच में वास्ता रखता है, कफील के तौर पर रखता है और इसके अलावा नहीं रखता है। तो अब ये कफालत के तौर पर रखने को जरूरत नहीं है। मुराबहा हकीकत में मुराबहा नहीं है, इसलिए कि मुराबहा तो किसको कहते हैं, एक आदमी एक चीज खरीदे, खरीद कर दूसरे को नफा के साथ बेचे। यहाँ तो दोनों मुश्तरी और बाय अलग अलग है। बैंक के बीच में खाली वास्ता है, बैंक न खरीदार है न बाय है। अब बैंक चाहे बाय बनने की शक्ल इख्तियार करे उधर से या इधर से खरीदार बनने की शक्ल अपनाए, तो ये दोनों शक्लें चाहिए। और मुराबहा उसी को कहते हैं जिसमें कोई बाय बने न कोई क्या तो मुकद्दर बाय न मुश्तरी, नाम के ही है, हकीकत तो मुराबहा पाया ही नहीं गया। इसलिए कि दरामद कुनिंदा पहले बाय से पूरा मामला तय कर चुका होता है, सिर्फ मंगवाने के वक्त बैंक बीच में आ जाता है। सरकारी कागजात में और कानूनी एतबार से दरामद कुनिंदा यानी इम्पोर्टर बैंक को नहीं समझा जाता बल्कि असल मुश्तरी को ही समझा जाता है। सौदा की आपके साथ बैंक बीच में आकर सब कुछ मसले हल करता है आजकल ये इन बैंकों के अंदर, सेक्युलर बैंकों में। लेकिन इस्लामी जब बैंक होगा तो वहाँ तो ये जायज नहीं है, इसलिए वहाँ क्या करना होगा। अब वो आकर ये कहे कि मैंने फलाने से सौदा किया है, आप मेरे साथ शरीक हो जाओ, तो किस तरह का शरीक दोनों के दरमियान हो सकता है। दरामद कुनिंदा ये कहे कि मुझे माल तैयार करके फलाने को देना है, अब जब तैयार या आना है दोनों में, तो अब उसमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ी उसके लिए वो बैंक के साथ जाती मामला करे वो अलग है कि मैं मुझे इतने रुपयों की जरूरत है। बैंक कहेगा कि रुपये तो हम दे नहीं सकते, मुकद्दर हम तुम्हारे साथ शरीक होना चाहते हैं, तुम्हें ये जो जरूरत है ये जरूरत में हम तुम्हारे इस धंधे में हम तुम्हारे पार्टनर बन जाए तो जायज होगा। बाकी लेकिन होता नहीं है ऐसा, दरामद के साथ इस तरह का मामला नहीं होता, बरामद करने वाले के साथ बरामद वाले के साथ भी ये मामला नहीं होता। बैंक फिर भी बोलना जाता है दरामद कुनिंदा ने बरामद किया, हालांकि बैंक है ही नहीं। दूसरे मुल्क से जो बाय हो रहा है कारोबार दुनिया भर में, खाली कागजी कार्रवाई नहीं है, हमारा फरमान है, इसलिए ये चीजें सही नहीं है। दूसरे मुल्क से जो बाय माल भेजता है वो भी बैंक को खरीदार नहीं समझता है। तीसरी वजह यह कि मुराबा के जवाज के लिए जरूरी है कि वो चीज जो दरामद की जा रही है पहले बैंक के जमान में आए, जबकि बसा होकर ऐसा नहीं होता। इन वजह की बिना पर एलसी का मामला मुराबा के तौर पर करना पसंदीदा नहीं, ताहम अगर मुराबा की शराइत का लिहाज सही शरई तरीके से हो तो मामला जायज है। सही तरीके से हो, और सही तरीका यही है कि जब उसको होता ऐसा भी है कि एक आदमी को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, काम करने का मिल गया, उसकी कंपनी है, कारोबार कर रहा है, अचानक दूसरी जगह से ऑर्डर आया, तो यकीनी बात है कि माल तैयार करने का उसको ऑर्डर आया है। तो अब ये माल जब तैयार करेगा तो कितना रुपया उसके पास नहीं है, इसलिए कि उसने बहुत सारा माल दूसरों को दिया है, वहाँ से उधार भी होता है, तिजारत में दोनों चीजें होती है, दूसरों के ऊपर आपका कर्जा भी होता है। अब आपके पास इस पर कैश नहीं है या है लेकिन आप निकालना नहीं चाहते, आइंदा महीना तनख्वाह देनी है, तो इसके इतने टेंशन है, बहुत सारी मुश्किलात होती है। तो मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, इजारत में जो प्रैक्टिकल लगे हुए उनको मालूम है कि कैश क्यों नहीं निकाले जाते। तो अब इनमें से कोई ना कोई वजह ऐसी होगी जिसकी वजह से वो कैश नहीं निकाल सकता, तो अब वो जाएगा किसके पास, इस्लामी बैंक के पास, इस्लामी मुल्क है। अब उनके पास जाकर ये कहेगा कि मुझे कारोबार करना है लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। अब वो पूछेंगे कि क्या करना है, तो कल वहाँ कंपनी का माल तैयार करना है, तो मार्केट में से कच्चा माल लाना है, उसको तैयार करके देना है। तो वो कहेंगे कि धागा आप खरीदेंगे, उसमें हम आपके साथ शरीक, कपड़ा है तो कागजात, किताब है तो कागज में हम आपके साथ शरीक। इस तरीके से जो कच्चा माल है उसकी खरीदारी में हम शरीक बन जाए। एक तो ये शक्ल, और एक ये शक्ल कि वो कहे कि कागज ही हम खरीद लेते हैं और कागज खरीद कर हम तुम्हें बेच रहे हैं, तुम्हें तो मिल ही रहा है और फिर उधार मिल रहा है, कभी देना नहीं है हमें, लेकिन कागज हमें जितने में मिलेगा हम इतने पर इतने फीसद नफा अपना लेंगे, और ये जायज है इस्लाम। ये इस तरह की प्रैक्टिकल शक्लें अगर है तब तो जायज है, लेकिन मसनूई शक्लें, किताब तैयार हो चुकी है, अब पैसे लेने गया तो ये कहे कि भाई कागज के पैसे, किताब तो तैयार हो चुकी है, कौन से कागज के पैसे, कपड़ा तैयार हो चुका है और अब आप बैंक के पास लेने के लिए जाओ, तो ये शक्लें भी करते हैं। बैंकों में इस तरह के भी धंधे हो रहे हैं। एलसी का सही मुतबादिल ये है कि ये मामला, एलसी का मतलब कफालत है, यहाँ कफालत किस चीज की ली जा रही है, जब कफालत सही नहीं और फिर शरई तौर पर वो मुराबहा ही नहीं है। ये मामला शिरकत या मुजराबत के तरीके पर किया जाए। अगर एलसी जीरो मार्जिन पर हो तो मुजारबा होगा और बैंक रब्बुल माल और इम्पोर्टर मुजारिब होगा। और अगर एलसी का आप सुन चुके हैं, एलसी के लिए आपने खाता खुलवा दिया, अब अगर आपने बैंक को ये कहा कि देखिए मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, पूरी रकम आपको ये अदा कर दी है, वो अदा कर रही है, तो 100% रकम उसकी है, तो उस पर सूद वो इन बैंकों के अंदर ज्यादा लेते हैं। 50% अगर वो आपको रकम देती है ना, 50 आप लगा रहे हैं, तो
50% आपने उनसे ली, इस पर इस एतबार से वो सूद लेते हैं, 25% हो तो उसके हिसाब से सूद लेते हैं। तो ये वहाँ आप करते हैं। इस तरह इस्लामी बैंक के साथ भी आप मुशारका मुजारबा का मामला कर सकते हैं। अब अगर जीरो मार्जिन है तो मुजारबा हुआ, इसलिए कि मुजारबा में एक के पूरे पैसे और दूसरे का सिर्फ काम। अब यहाँ पर आपका तो कोई काम है ही नहीं, आपने तो पूरे पैसे वहाँ से लिए। और अगर एलसी खुलवाने वाला भी कुछ रकम लगा रहा है तो शिरकत होगी। शिरकत होगी, आपकी भी न उनकी भी। जैसे हमारी शेयर कंपनियों में हमारी शिरकत भी हो रही है, और खुद जो लोग हमें शेयर बेच रहे हैं वो कंपनी वाले, वो खुद भी हमारे साथ, वो रब्बुल माल भी है न मुजारिब भी है, सिर्फ मुजारिब नहीं होगा। मुशारका या मुजारबा की सूरत ये होगी कि बैंक इंपोर्टर से कहेगा कि माल की कीमत हम अदा कर देते हैं और माल को बेचने से जो नफा आएगा वो तयशुरा तनासुर से तकसीम कर लिया जाएगा। इसमें यह सूरत भी काबिल गौर हो सकती है कि बैंक एक मखसूस मुद्दत के लिए मुशारका करे, उस वक्त तक अगर सामान फरोख्त होकर नकद रकम मिल गई तो नफा तयशुरा तनासुर से तकसीम कर लिया जाए, और अगर सामान बाजार में फरोख्त नहीं हुआ तो इम्पोर्टर बैंक का हिस्सा खरीद कर उसे अदायगी कर दे। अब रकम आ गई है तब तो बैंक को दे देगा वो, और अगर नहीं आई है तो ये कहेगा कि और दे भी नहीं सकता है, रोचे भी हो ताजिर के हैं हम समझे, तो वो बैंक को कहेगा कि मेरे पास से खरीद लो। और इस्लामी बैंक है, खरीदना बैंकों की तरह नहीं होगा, वो खरीद लेगा और वो रकम बेचकर चाहे उसे बेचे चाहे किसी और को बेचे, और फिर वो रकम जो मिल गई उससे वो अपना काम